Morning, dear students. I am Neha, your course teachers of Weed Management, which is Agro 5212. Okay, so today I have come up with the new lecture, which is basically entitled that is classification of herbicide. Okay, so our today's topic is classification of herbicides. In this particular lecture we will be dealing with some classification of herbicides. Okay, and you all students have come to know that some particular term. Okay, so without much ado, let us start our today's topic, which is classification of herbicides. So herbicides have been classified majorly in 5 categories. Okay, so first one is based on method of application, then second one is based on mode of the action, and then based on the mobility, and then based on the time of application, and the last one is based on the molecular structure. Okay, so we will discuss about these classification, so one by one. And so we take first one, which is based on method of application. Okay, so based on method of application, the herbicides have been divided in two main category. Okay, so first one is soil applied herbicides, and the second one is foliage applied herbicides. Okay, so after that, soil applied herbicide has been further divided in 4 categories, we could say. First one is surface application, second is subsurface layering or application also, then broadcast and band application, and then fumigant application. Okay, similarly, foliage applied herbicides have been also categorized in 4 categories. Okay, first is blanket application, second is direct spray, third is protected spray, and then spot treatment. Okay, so we will studies in these all classification one by one. So we take first one, all of them in soil applied herbicide. Okay, so let us see what is soil applied herbicides. Okay, so herbicide acts through root and other underground parts of the weeds. Okay, so soil applied herbicide application क्या है? बेसिकली ये है कि आप जो हर्बिसाइड को किसके थ्रू देते हैं, रूट के थ्रू या अंडरग्राउंड सॉइल के थ्रू जब आप देते हैं तो उस एप्लीकेशन को हम सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड एप्लीकेशन कहते हैं. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है फ्लूकोरेलिन. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मस्ट है. जैसे क्लासिफिकेशन में हमारे एग्जाम्पल्स मस्ट थे, क्लासिफिकेशन ऑफ द हर्बिसाइड में भी सारे एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए कि कौन सा सॉइल अप्लाइड है, कौन सा सरफेस एप्लीकेशन वाला हर्बिसाइड्स है. तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होगी. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज सरफेस एप्लीकेशन. सो दिस इज सेलेक्टिव इन नेचर. ओके, देन सेलेक्टिव herbicides are usually applied to soil surface with or without incorporation in the soil. Okay, so this is the new term, incorporation. So why we do incorporated in soil? Okay, I tell you what is the incorporation. ठीक है, so क्या होता है जब हम किसी भी हर्बिसाइड को सॉइल में प्री प्लांट, ठीक है, प्लांट उगने से पहले ही हम जब सॉइल में देते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं. ठीक है, तो उस एप्लीकेशन को हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ द सॉइल कहते हैं. ठीक है, सॉइल वीड फ्री जो सॉइल होती है उसको हम सीड बेड प्रिपरेशन के पहले या बिफोर आर क्रॉप सोइंग के पहले हम अगर देते हैं तो उस टर्म को, उस पर्टिकुलर टर्म जो है उसे हम इनकॉर्पोरेशन कहते हैं. ठीक है, सो मैनी सब्सटीट्यूटेड ट्राइएजिन, यूरिया और एनिलाइड herbicides are the common surface applied herbicides. ठीक है, so this is very important, triazine and urea. So this is very important and easy. ठीक है, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा. So remembering this thing and always mind it. Okay, so subsurface layering application. So
In this method, herbicide is applied 7 to 10 centimeters below the soil surface in concentrated band for controlling perennial weeds. ठीक है, सो सब सरफेस सॉइल एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं कि अबाउट, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट, अबाउट 7 to 10 सेंटीमीटर बिलो दी सॉइल, सॉइल से नीचे हम जो हर्बिसाइड है उसका एप्लीकेशन करते हैं. ठीक है, क्यों? पेरिनियल, जो पेरिनियल क्रॉप के जो पेरिनियल वीट के जो सीड्स होते हैं वो सॉइल में काफ़ी डेप्थ तक के दबे हुए रहते हैं. ठीक है, जो हर टाइम हर सीज़न में कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं. तो सब सरफेस सॉइल का यूज़, सब सरफेस हर्बिसाइड एप्लीकेशन का यूज़ हम मेजरली जो पेरिनियल वीड्स है उनको कंट्रोल करने के लिए करते हैं. ओके, सो मूविंग ऑन. Okay, then broadcast and band application. So as the name referred, what is broadcast application? जब हम छिड़काव विधि से किसी भी चीज़ का, चाहे वो बीज का हो या हर्बिसाइड्स का हो, हम एप्लीकेशन करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने फील्ड पे, तो उसे हम ब्रॉडकास्ट या बैंड एप्लीकेशन कहते हैं. ठीक है, सो application of herbicides over the entire area to be treated is called broadcast application. ठीक है, सो एप्लीकेशन क्या, जो हर्बिसाइड का हम पूरे एरिया में, पूरे एंटायर एरिया में अगर हम ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू कर देते हैं तो इस टाइप के जो एप्लीकेशन होते हैं उसे हम ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन कहते हैं. आफ्टर देन, if the herbicide application is restricted to the area along the crop row, इट इज़ द कॉल द बैंड एप्लीकेशन. ठीक है, अगर क्रॉप के साथ हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं एप्लीकेशन को हर्बिसाइड के, अगर आपका क्रॉप भी लगा हुआ है, ठीक है, तो अलोंग द क्रॉप रो अगर उसके साथ हमें हर्बिसाइड की एप्लीकेशन को हम रोकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड होता है जब, तो उस एप्लीकेशन को हम बैंड एप्लीकेशन कहते हैं. ओके, आफ्टर देन that fumigant application. ठीक है, so this is very important, fumigant application. So as the name referred, what is fumigation? In simple way we can say that in this method, application of herbicide in a concentrated band about gas, okay, that will destroy the weed seeds. So this is called the fumigation. Okay, so application of herbicides, fumigant can be applied either by soil injection, by releasing under sealed plastic cover. So that example, for example, is methyl bromide. ओके, तो मिथाइल ब्रोमाइड जो एग्जाम्पल है जिसको हम फ्यूमिगेंट के रूप में यूज़ करते हैं. ठीक है, फ्यूमिगेशन करते हैं. सो फ्यूमिगेशन मतलब धुआं करते हैं. ठीक है, फ्यूमिगेंट करते हैं, धुआं से करते हैं, और एक प्लास्टिक जो कवर का यूज़ करते हैं, सील्ड कवर का यूज़ करते हैं. ठीक है, जिससे जो वो धुआं हो वो बाहर ना निकले. ठीक है, वो जो टॉक्सिक जो भी मटेरियल हो, जो भी सब्सटेंस हो, वो बाहर ना निकले और वीट को किल करने में, वीट के सीड को किल करने में ये हेल्प करता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्यूमिगेंट एप्लीकेशन. ठीक है, सो मूविंग ऑन. Okay, so foliage applied herbicide is further divided in 4 categories. ठीक है, so firstly we could say that foliar applied herbicide. What is foliar applied herbicide? So we could say that direct application to the target plant. ठीक है, एज सिंपल हम बोल सकते हैं कि जब हम किसी टारगेट प्लांट को हम ख़त्म करना चाहते हैं तो सीधे सीधे उसमें हम अप्लाई कर दें. ठीक है, तो वो एप्लीकेशन प्रोसेस को हम फोलिएज एप्लीकेशन कहते हैं. ठीक है, सो हर्बिसाइड प्राइमरली एक्टिव ऑन द प्लांट फोलिएज. ठीक है, सो ये जो है आपको टारगेट प्लांट है जो आपका, तो टारगेट एप्लीकेशन, यू नो, direct application to the target plant is called as foliar application also. So this is very simple. For example, glyphosate and paraquat जो herbicide है उसका यूज़ हम foliage application के लिए करते हैं. ठीक है, जैसे यूरिया और ट्राइएजिन जो था वो सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप याद करेंगे. और फ्यूमिगेंट क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड. ठीक है, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं आपको याद होने चाहिए. फ्यूमिगेंट अप्लाइड जो हर्बिसाइड है उसमें हम मिथाइल ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस. ओके, आफ्टर दैट ब्लैंकेट एप्लीकेशन. ओके, सो व्हाट इज ब्लैंकेट एप्लीकेशन?
It is the uniform application of herbicide to standing crop without any consideration to the location of the crop plant. ठीक है, तो हम कोई कंसीडर नहीं करते, ये हम जो कहते हैं, जो स्टैंडिंग क्रॉप जो होती हैं उसमें हम स्टैंडिंग क्रॉप को कंसीडर नहीं करते और क्या करते हैं, क्रॉप प्लांट का कोई ऐसी लोकेशन नहीं देखते हम कि यहाँ पे क्रॉप प्लांट लगा है तो हमें हर्बिसाइड नहीं डालना है. ठीक है, सो यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, हम एक समान एप्लीकेशन हम कर देते हैं, चाहे पे वहाँ पे वीड हो या ना हो. अगर किसी जगह हम देखते नहीं कि यहाँ पे नहीं है तो यहाँ नहीं डालें. ठीक है, सो वही कह रहा है कि इट इज़ अ यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड टू स्टैंडिंग क्रॉप विदाउट एनी कंसिडरेशन टू द लोकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट. ओके, then highly selective herbicide can be applied by this method. ठीक है, अब highly selective देखिए इसके नाम से ही हमें समझ आ रहा है. पहले तो आपको याद रखना है कि ब्लैंकेट एप्लीकेशन क्या है, जिसमें हम कंसीडर नहीं करते. क्या कंसीडर नहीं करते, क्रॉप प्लांट को कंसीडर नहीं करते, यूनिफॉर्मली हम जो एप्लीकेशन है हर्बिसाइड का वो कर देते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं देखते हम कि इस पर्टिकुलर जगह पे काफ़ी ज़्यादा वीड है या दूसरी जगह पे वीड ही नहीं है. ठीक है, हम एक समान छिड़काव जो है हर्बिसाइड का कर देते हैं. इस वजह से ही हमें इसमें सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है. क्यों, क्योंकि सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स जो है वो ऐसा हर्बिसाइड्स है वो सिर्फ उसे टारगेट प्लांट को ही किल करेगा, हमारे क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. ठीक है, इसलिए हम मेजरली ब्लैंकेट एप्लीकेशन जब करते हैं तो सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इससे रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं कि ब्लैंकेट एप्लीकेशन क्या है, और ये याद कर सकते हैं कि हम ब्लैंकेट में सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं. तो क्यों करते हैं, क्योंकि हम यूनिफॉर्मली जो हर्बिसाइड का एप्लीकेशन पूरे फील्ड में कर देते हैं. ठीक है, and after that direct spray. ठीक है, in this method herbicides are applied to weeds between crop rows avoiding the crop foliage. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो हम हर्बिसाइड्स का जो एप्लीकेशन करते हैं वो क्रॉप रो के और वीड्स के बीच में करते हैं. ठीक है, और क्या करते हैं, क्रॉप फोलिएज को अवॉइड करते हैं. ठीक है, क्रॉप के ऊपर डायरेक्टली हम स्प्रे नहीं करते, हम वीड के ऊपर डायरेक्ट स्प्रे करते हैं. बट इट इज़ अप्लाइड टू वीड्स बिटवीन क्रॉप रो. ठीक है, जो क्रॉप के बीच में जो वीड्स पाए जाते हैं वहाँ पे हम अवॉइड करते हैं, छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं और अवॉइडिंग द क्रॉप फोलिएज. ठीक है, तो फोलिएज का मतलब ही होता है कि डायरेक्ट एप्लीकेशन टू दी टारगेट प्लांट. सिंपली अगर आपको समझना है तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि हम किसी भी टारगेट प्लांट पे डायरेक्ट एप्लीकेशन करते हैं हर्बिसाइड का तो वो फोलिएज अप्लाइड होता है. ठीक है, एप्लीकेशन होता है हर्बिसाइड का. सो दिस मेथड कैन बी अडॉप्टेड व्हेन द क्रॉप इज वेल अप ओवर द वीड्स एट द सेम टाइम ऑफ हर्बिसाइड एप्लीकेशन. ठीक है, तो हम जो इस मेथड को हम जब अडॉप्ट करते हैं, जब हम देखते हैं कि जो क्रॉप है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे कंडीशन पे है. ठीक है, काफ़ी अच्छा बढ़वार है उसका. ठीक है, वेजिटेटिवली काफ़ी ग्रोथ है उसका. ठीक है, अगर हम ऐसे देखते हैं किससे ज़्यादा अच्छा ग्रोथ है, ओवर द वीड्स एट द सेम टाइम. ठीक है, उसी टाइम पे वीड के बढ़वार के कंपैरिजन में हमारा जो क्रॉप प्लांट है उसका जो ग्रोथ है वो अच्छा है. तो उस कंडीशन पे हम ये डायरेक्ट स्प्रे करते हैं. ठीक है, तो डायरेक्ट स्प्रे करने से क्या होता है, जो हर्बिसाइड्स होते हैं अलग अलग केमिकल नेचर के होते हैं, जो हमारे जो वीड्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, उसके जो लीव्स में हम अगर स्प्रे करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, उनके जो वैक्सीन जो लेयर होती है ना, वीड्स के जो लीव्स में वैक्सीन लेयर होती है उसमें वो पेनिट्रेट करते हैं. ठीक है, घुसते हैं, उसके बाद इजाकुलेट करके वो उसे हार्म करते हैं या टारगेट करते हैं या किल करते हैं, हम कह सकते हैं. ओके, सो मूविंग ऑन. Okay, so third one is protected spray. So non-selective herbicide can apply to obtain selective weed control in distinctly planted vegetables and crops such as cotton by covering non-target plant with plastic
और मेटालिक कवर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स जो होते हैं, ठीक है, जो ज़रूरी नहीं है कि आपके वीड्स को ही टारगेट करें। कई बार नॉन सेलेक्टिव काइंड ऑफ जो हर्बिसाइड्स होते हैं वो हमारे क्रॉप प्लांट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इनका हम एप्लीकेशन करते हैं सेलेक्टिव वीड कंट्रोल के लिए। ठीक है, इन डिस्टिंक्ट प्लांटेड वेजिटेबल्स एंड क्रॉप सच एज कॉटन। ठीक है, कॉटन वगैरह के जो कॉटन जो होता है उसके क्रॉप में हम नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं प्रोटेक्टेड स्प्रे के अंदर। ठीक है, जो क्या करता है, जो नॉन टारगेट प्लांट होता है उसको कवर करके रखता है। ठीक है, लेकिन जो टारगेट प्लांट होता है उसको मारता है। ठीक है, सो क्या करते हैं हम, जो कवरिंग नॉन टारगेट प्लांट होता है उसको हम क्या करते हैं, प्लास्टिक कवर से या जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उससे हम कवर कर देते हैं। जरूरी नहीं कि मेटालिक कवर ही होना चाहिए, कई बार हम उसे प्लास्टिक का कवर से, जैसा आपके पास रिसोर्स है उसके हिसाब से आप उसे कवर कर देते हैं ताकि उसे नुकसान कम हो। ठीक है, आफ्टर दैट if the soil conditions do not permit use of intercultivation, implements or manual labor for weeding, this method can be followed। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि सॉइल जो है वो इंटरकल्टिवेशन करने के लिए या मैनुअली वीडिंग करने के लिए सही नहीं है, तब हम इस प्रकार के प्रोटेक्टेड स्प्रे एप्लीकेशन जो है, जो फोलिएज एप्लीकेशन के थ्रू के अंदर आता है, उसका यूज़ हम करते हैं। ठीक है, देन स्पॉट ट्रीटमेंट। सो इफ द हर्बिसाइड इज अप्लाइड टू स्मॉल पैचेस ऑफ वीड्स leaving the relatively weed free patches untreated, it is called spot treatment। ठीक है, सो स्पॉट ट्रीटमेंट एज द नेम सजेस्ट, हमें समझ आ रहा है कि पर्टिकुलर उसी स्पॉट को हम टारगेट करेंगे जहाँ वीड्स प्रेजेंट है। ठीक है, जो जहाँ वीड नहीं है, जहाँ वो एब्सेंट है, नहीं पाए जाते, वीड के एब्सेंस में हम वो स्पॉट को नहीं लेंगे। तो ये पैचेस, स्मॉल पैचेस में हम वीड को जब ट्रीट करते हैं हर्बिसाइड से, सो उस ट्रीटमेंट को हम स्पॉट ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है, इट मिनिमाइज द हर्बिसाइड यूजेस पर यूनिट एरिया। ऑब्वियस है, जहाँ हम ब्रॉडकास्टिंग हर्बिसाइड का यूज़ कर रहे थे, ठीक है, जहाँ नहीं लगा है वहाँ भी हम उसका यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या है, एज़ कम्पेयर टू स्पॉट ट्रीटमेंट हर्बिसाइड ज़्यादा लगेंगे। अब हर्बिसाइड ज़्यादा लगेंगे तो कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये जो है इस ट्रीटमेंट से, स्पॉट ट्रीटमेंट से हम जो इकोनॉमिक लेवल है जो हमारा, ठीक है, वो हम कम कर सकते हैं। तो ये मिनिमाइज करता है यूजेस ऑफ हर्बिसाइड्स को। ठीक है, सो मूविंग ऑन। Okay, so second classification is here, as you can see, which is based on the mode of the action. Okay, so based on the mode of the action, there are two classification in this categories. ठीक है, first one is selective herbicide and second one is non-selective herbicides. Okay, so what is the selective herbicide? Okay, so let us see. A herbicide is considered as selective when in a mixed growth of plant species. Okay, it kills some species without injuring the others. ठीक है, so this is a very important. Selective herbicide is a most convenient for us because of this is the selective in nature. ठीक है, so ये उसी को सेलेक्ट करेगा जो हमारा टारगेट है। ठीक है, तो हमारे टारगेट प्लांट को ही ख़त्म करेगा, हमारे क्रॉप प्लांट पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं छोड़ेगा। ठीक है, सो ये होता है आपका सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स। ओके, सो अ सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स इज वन of that will kill some plant species which apply to a mixed plant population without causing serious injury to the other species। ठीक है, जहाँ हम मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स उगाते हैं, तो अलग अलग टाइप के क्रॉप में अलग अलग टाइप के वीड्स होते हैं, है ना। हम अगर पैडी उगाए हैं, ठीक है, उसके साथ हम मूंग भी उगाए हैं, या पिजन पे हमने मेड़ में दे रखा है,
ठीक है, मेड में हमने पिजन पी लगा दिया है। तो जो पैडी के फील्ड में जो वीड्स होंगे और पिजन पी के जो वीड्स होंगे दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है, अलग अलग नेचर के होंगे। तो हम इसका यूज़ इसीलिए करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम इसका यूज़ जो है मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम में करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका नेचर ऐसा होता है, सेलेक्टिव इन नेचर, ठीक है, ये सेलेक्टिव करते हैं। हाँ, अच्छा, हमारा ये टारगेट है तो हमें इसे ही ख़त्म करते हैं बिकॉज ऑफ दैट। ओके, सो इससे क्या होता है, इट डिक्रीजिंग इंजरी होती है। इंजरी नहीं होगी, मैं ये नहीं कहूँगी, कुछ ना कुछ हद तक तो क्रॉप प्लांट को नुकसान हर्बिसाइड्स पहुँचाते ही हैं, ठीक है, लेकिन इससे कम इंजरिंग होता है, इंजरी होता है प्लांट का, ठीक है। सो ऑल प्री एमरजेंस, प्री प्लांट एमरजेंस एंड POE पोस्ट प्लांट एमरजेंस आर सेलेक्टिव टू अ रेस्पेक्टिव क्रॉप ऑन विच दे आर अप्लाइड, ठीक है। तो ये सारे जो प्री एमरजेंस, पोस्ट एमरजेंस और प्री प्लांटिंग इनिशिएशन जो हर्बिसाइड्स हैं उनका हम यूज़ जो है वो इस हर्बिसाइड एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं। सो सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स कैन यूज़ इन क्रॉप एरियाज। ओके, सो लॉन, गार्डन एंड ग्रास लैंड में बेसिकली ये हर्बिसाइड्स एप्लीकेशन का हम यूज़ करते हैं, जिनका मोड ऑफ द एक्शन किस टाइप का होता है, सेलेक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है। सो देयर आर सम एग्जांपल्स विच इज़ एट्राजीन, बूटाक्लोर, एलाक्लोर एंड पेंडीमेथाइलिन, ठीक है। तो दीज आर ऑल दी सेलेक्टिव इन नेचर। ओके, so moving on. Okay, the second one is non-selective herbicides. Okay, so non-selective herbicide as name referred, it destroy majority of treated vegetation. ठीक है, आप जहाँ जहाँ वेजिटेशन होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके क्रॉप प्लांट का वेजिटेशन हो या आपके वीट प्लांट का वेजिटेशन हो, ठीक है, वो वहाँ वहाँ क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। मेजॉरिटी मतलब ये यही काम करता है कि वो हार्म करता है हमारे क्रॉप प्लांट को भी। क्यों? क्योंकि नॉन सेलेक्टिव इन नेचर का होता है, ठीक है। सो देयर आर सम एग्जांपल्स, दैट इज पैराक्विड, डाइक्विड, ग्लाइफोसेट, सोडियम क्लोरेट, वीड्स ऑल, एरोसलाइन, etc. So many herbicides are non-selective in nature, but I have given in some category which you can remember, क्योंकि इतना सारा आप याद नहीं कर सकते, तो आपको कुछ तो याद करना ही है, ठीक है। तो कुछ याद करना है तो मैंने इजी वन लिया हुआ है यहाँ पे जो आप याद कर सकें। सो पैराक्विड, डाइक्विड and glyphosate, sodium chloride, these are the non-selective in nature. So the non-selective herbicides are employed for the general vegetation control on industrial sites, fallow land and aquatic and tannins coat. Okay, so certain selective herbicides when applied at high rates can act as non-selective plant killers, फॉर इंस्टेंट सेमाजिन एंड डायूरन, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई रेट्स या हाई कॉन्सेंट्रेट्स में होते हैं, जिनका इमल्सिफायर कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस टाइप के जो हर्बिसाइड्स है वो सीमाजिन और डायूरॉन है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस। सो नॉन सेलेक्टिव एंड सेलेक्टिव हर्बिसाइड आपको याद रखना है। नॉन सेलेक्टिव में आपको एट्राजिन, बूटाक्लोर, एलाक्लोर और पेंडीमेथिलिन, ठीक है। मैंने बहुत ही कम एग्जांपल्स रखे हैं ताकि आप याद रख पाएँ, ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते थे सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स के और नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स के, तो ये सारे एग्जांपल्स आपको याद करने हैं। आपको ऐसा याद करना है कि अच्छा एट्राजिन जो है वो सेलेक्टिव है, सीमाजिन जो है वो नॉन सेलेक्टिव है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको एक कोडिंग करनी है और उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग उसके हिसाब से आपको याद करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन को हम फेजेस में पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा है और समझने के लिए भी है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक बहुत सारे टर्म ऐसे हैं जिससे आप अवेयर नहीं हैं, तो वो सारे टर्म को भी हमें टारगेट करना है और समझना है ताकि आपको आगे समझ आए, ठीक है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड आई थिंक। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच, बी सेफ एंड टेक केयर।